Hello kids, a very hearty good morning to all of you. I hope you all are doing good, you all are safe, you all are healthy and you all are happy. This is our English class. So I welcome you all to my English class and we are doing lesson number 2, The Little Birdie. Children, I hope you all are watching the videos on a regular basis and revising the work, whatever we are doing, whatever I am explaining in the videos or whatever I am explaining in the online class or the work which I am sending to you through WhatsApp. I hope you all are doing it in your book or notebook, wherever you have to do it, and at the same time you must revise it also. जो भी मैं आपको वर्क भेज रही हूँ, चाहे उसे कॉपी में करना हो, चाहे बुक में करना हो, या जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ थ्रू द वीडियोस या ऑनलाइन क्लासेस में जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं चिल्ड्रन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ऑन रिवाइजिंग इट ऑल्सो. जैसे जैसे आप वर्क कर रहे हो अपना, उसको साथ में आप थोड़ा सा रिवाइज भी करते रहोगे, अदरवाइज वर्क याद नहीं रहेगा और आपको समझने में प्रॉब्लम होगी. ओके, सो वी आर डूइंग लेसन नंबर 2, लिटिल बर्डी, एंड वी आर डूइंग द exercises which are given after the lesson. After the completion of lesson, we have started doing the exercises. So, to continue with the exercise, in this we have done sentence, punctuation, word building, and then fun with the sound of E. So, to continue the exercises, today we will do talk time and then writing skills. Okay? So in talk time, we will discuss this is and that is. In the previous lesson, through talk time, we discussed the concept of is, am and are. इसके पहले वाले लेसन में टॉक टाइम में हमने क्या किया था? हमने is, am और are ये कहाँ यूज होते हैं इससे हमने डिस्कस किया था. ओके, दैट am is used with I, is used with single person and are is used with two or more than two. Okay, in this lesson through talk time we will learn about the use of this is and that is. मतलब this is कहाँ यूज करते हैं and that is कहाँ यूज करते हैं. Now in your English book, this is your English book, Wordsworth English Reader Book 1. In your English book, you open page number 17, 17. Okay, page number 17, 17. The date today is, okay, open page number 70, 17. We are still continuing lesson 2, Little Birdie. Okay. Okay. So look at this picture carefully. The picture which is given in the book. Look at this picture carefully and read what Meenu has to say about the two houses. This is a girl whose name is Meenu and there are two houses, one on right side of her and one on the left side. उसके right and left दोनों side में एक एक houses हैं. Now she wants to tell you about both the houses. वो आप सबको उन दोनों houses के बारे में कुछ बताना चाहती है. Okay? Read what Meenu has to say about the two houses.
Now see, Meenu, one is on her right side and one is on her left side. So one house, she says, this is my house and that is Rahul's house. Maybe she is standing in front of her house. वो अपने घर के आगे खड़ी है. So she is saying, this is my house and that is Rahul's house. She is pointing a finger towards this house. वो जो दूसरा वाला हाउस है उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करके she is saying that is Rahul's house. First, children, I will read it and then I will explain. Okay? So she is standing in front of her house. She is saying, this is my house and that is Rahul's house. This house has a red door. She is talking about her house. She is saying, this house has a red door and that house has a blue door. As you can see in the picture, this house has a red door. You can see the red door. And that house has a blue door. You can see the blue door. वो कह रही है कि इस घर में रेड डोर है और उस घर में ब्लू डोर है. Then she says, this house has a big tree. इस घर में एक बड़ा सा पेड़ है. You can see the big tree. She is saying, this house has a big tree. That house does not have a tree. You can see कि इस घर में एक बड़ा सा ट्री है and उस घर में एक भी ट्री नहीं है. There is no tree. Then she says, this house does not have a chimney. चिमनी मालूम है ना, घर के ऊपर होती है चिमनी, जहाँ से घर के अंदर जो अगर कुछ धुआं वगैरह जो होता है, जब हम कुकिंग करते हैं तो धुआं निकलता है, तो चिमनी के थ्रू सारा धुआं घर से बाहर निकल जाता है. ओके, अगर धुआं घर में फैलेगा तो पोल्यूशन होगा, हो सकता है हमें सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी. चिमनी होती है तो सारा जो धुआं है दैट गोज आउट थ्रू द चिमनी. तो शी इज सेइंग, दिस हाउस डज नॉट हैव अ चिमनी. इस घर में चिमनी नहीं है. एंड दैट हाउस हैज अ चिमनी. इस घर में चिमनी है. यू कैन सी द चिमनी ऑन टॉप. चिमनी जो होती है वो छत के ऊपर रहती है, ठीक है, जहां से पूरा धुआं बाहर चला जाता है. देन शी सेज, आई लाइक दिस हाउस. ऑब्वियसली उसका अपना घर है तो उसको पसंद आता है. तो शी इज सेइंग, आई लाइक दिस हाउस. देन शी सेज, दिस हाउस इज नाइस टू. ये हाउस भी अच्छा सा है. टू, वन इज, जैसे हम कहते हैं ना, इन टू, दैट इज टू, into the dustbin, into the basket, and this is T-O-O, two. T-O-O, two means B. So she is saying, I like this house and that house is nice too. अपना घर obviously उसको अच्छा लगता है. So she is saying, I like this house. मुझे ये घर अच्छा लगता है and that house is nice too. वो घर भी अच्छा है. Okay? Now, have you noticed the difference between this house and that house? आपको this house, this and that, इसमें difference समझ में आया? This house, that house. This house has a red door, that house has a blue door. This house has a big tree, that house does not have a tree. This house does not have a chimney, that house has a chimney. I like this house, that house is nice too. Okay? This house, she is using this for the house which is near to her. Okay? She is using this for the house which is near to her. वो जिस घर के पास खड़ी है उस हाउस के लिए वो क्या यूज कर रही है? She is using this. Okay? The house where she is standing which is near to her, she is using this for that house. उस घर के लिए, जिस घर के पास वो खड़ी है उसके लिए वो दिस यूज कर रही है. एंड द हाउस विच इज स्लाइटली अवे फ्रॉम हर, जो घर उससे थोड़ा दूर है, उसके लिए वो क्या यूज कर रही है? उसके लिए शी इज यूजिंग दैट. ठीक है, वो. तो चिल्ड्रन, वी यूज दिस फॉर समथिंग विच इज नियर टू अस. जो चीज हमारे पास है उसके लिए हम दिस यूज करते हैं. And we use that
फॉर समथिंग जो थोड़ा दूर है. दैट इज जो थोड़ा दूर है, जिसको कि हम पॉइंट आउट करके दिखा रहे हैं, उसको बोलते हैं दैट. ओके, सो वी यूज दिस फॉर समथिंग विच इज नियर. लाइक आई कैन से दिस इज अ बोर्ड. I'm writing on the board, so I can say this is a board. Okay, this, because this board is near to me. I am standing in front of the board. मैं बोर्ड के पास खड़ी हूं, तो I can say this is a board. Okay, that is the wall. उधर मेरे सामने अगर वॉल है तो I will say that is a wall. Why that? Because वो वॉल जो है वो मुझसे दूर है. बोर्ड के सामने मैं खड़ी हूं. बोर्ड is near to me, so I say this is a board and that is a wall. This is a board, that is a door, wall, anything. That is a door. Okay, जो भी चीज हमसे दूर पे है. So children, we use this for something which is near to us. जो चीज हमारे पास होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? We use this. And we use that for something which is slightly far away from us. जो चीज हमसे थोड़ी दूर होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? That. Okay? So in this picture you can see, since she is standing in front of her house, वो अपने घर के सामने खड़ी है. That is why she is using this for describing her house. अपने घर के बारे में वो जो भी चीज बता रही है, whatever she is telling us, she is using this. अपने घर के बारे में वो जो भी बता रही है वो सबके लिए this यूज कर रही है, और राहुल के हाउस के लिए वो जो भी बता रही है she is using that. Because राहुल का घर थोड़ा डिस्टेंस पे है. As you can see, आपको देख के भी समझ में आएगा कि ये घर जो है उससे बहुत पास है, एंड ये वाला जो घर है, राहुल का जो घर है, वो थोड़ा उससे दूर है. सो दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है. दैट इज राहुल का घर. दैट इज राहुल्स हाउस, मतलब वो राहुल का घर है. जो चीज पास है उसको हम बोलते हैं ना, ये एक बोर्ड है, ये एक बोर्ड है, वो वॉल है, वहां पे दरवाजा है. ओके, सो जो चीज दूर होती है उसके लिए हम बोलते हैं ना वहां पर, वो देखो. सो दैट, उसका मतलब है दैट. तो सिंस शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, शी इज सेइंग दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है. एंड दैट इज राहुल्स हाउस, वो राहुल का घर है. वो दूर दिखा करके कह रही है दैट इज राहुल्स हाउस. नाउ शी इज डिस्क्राइबिंग हर हाउस एंड शी इज टेलिंग अस अबाउट राहुल्स हाउस. वो अपने घर के बारे में बता रही है और राहुल के घर के बारे में बता रही है. तो व्हेन शी इज टेलिंग अस समथिंग अबाउट हर हाउस, शी इज सेइंग दिस हाउस. जब वो हमको अपने घर के बारे में बता रही है तो वो क्या कह रही है? शी इज सेइंग दिस हाउस. एंड व्हेन शी इज टॉकिंग अबाउट राहुल्स हाउस, शी इज सेइंग दैट हाउस. ओके, दिस हाउस हैज अ रेड डोर. इस घर का दरवाजा रेड है. एंड दैट हाउस हैज अ ब्लू डोर. उस घर का दरवाजा ब्लू है. दिस हाउस हैज अ बिग ट्री. इस घर में एक बड़ा सा पेड़ है. दैट हाउस डज नॉट हैव अ ट्री. उस घर में ट्री नहीं है. दिस हाउस डज नॉट हैव अ चिमनी. इस हाउस में चिमनी नहीं है. एंड दैट हाउस हैज अ चिमनी. दिस हाउस डज नॉट हैव अ चिमनी. दैट हाउस हैज अ चिमनी. आई लाइक दिस हाउस. दैट हाउस इज नाइस टू. Okay, so we use this for something which is near to us, and we use that for something which is slightly away from us, जो हमसे थोड़ा दूर है. Okay, we will learn about this is and that is in grammar also. अभी जब मैं ग्रामर की बुक स्टार्ट करूंगी तो उसमें भी हम this is and that is पढ़ेंगे. Okay, now color the picture. This coloring part you can do on your own. जो भी आपको कलर अच्छा लगता है, जो भी आपको कलर्स पसंद आते हैं इसमें, आप उससे इसको कलर कर सकते हो. ओके, तो इन दिस मैनर
यू कैन डिस्कस विथ योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना करके यू कैन यूज दिस इज एंड दैट इज. आप आपस में भी बात कर सकते हो. दिस इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री. ओके, दिस इज माई हाउस, दैट इज योर हाउस. दिस इज माई बाईसाइकिल, दैट इज योर बाईसाइकिल. आप आपस में भी यू कैन मेक अ स्मॉल ग्रुप एंड यू कैन make few small sentences using this is and that is. आप घर में भी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर्स या सिस्टर्स के साथ भी आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो दिस इज एंड दैट इज यूज करके. ओके चिल्ड्रन, सो व्हेन वी स्टार्ट ग्रामर बुक, in grammar also we will learn about this is and that is. Okay, so you can talk about different situation. किसी के भी बारे में आप बात कर सकते हो using this is and that is. This is talk time. आप जितना ज्यादा बात करोगे, जितना ज्यादा कॉन्वर्सेशन करोगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइटिंग स्किल. राइटिंग स्किल मीन्स टू इम्प्रूव योर, जो आप कोई चीज लिखते हो तो इम्प्रूव इट मोर, उसको और इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, इन द बिगनिंग ओनली आई टोल्ड यू, मैंने जब क्लास स्टार्ट किया था फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि देयर आर 4 मेन स्किल्स इन लैंग्वेज. जो लैंग्वेज होती है या कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसमें बेसिक 4 चीजें हैं. फर्स्ट इज लिसनिंग, मतलब आप सुनना, देन स्पीकिंग बोलना, रीडिंग उसको पढ़ना एंड राइटिंग. ओके, अगर जब तक आप सुनोगे नहीं, until and unless you listen it properly, you will not be able to understand. आपको समझ में नहीं आएगा कि टीचर ने क्या बोला. ठीक है, या आपके पेरेंट्स ने या किसी ने भी, अगर आपको उसको सुनोगे ही नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. तो आप क्या करना है आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा. तो फर्स्ट इज लिसनिंग, आपको सुनना जरूरी है. देन स्पीकिंग, ठीक है, बोलना. until and unless you can express yourself, आप जब तक अपने आप को बता नहीं पाओगे कि आपको क्या चाहिए, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट. ठीक है, आप अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, एक्सप्रेस कैसे करोगे, या तो बोल करके और लिख करके. तो उसके लिए बोलना भी आना चाहिए एंड लिखना भी आना चाहिए. ठीक है, तो स्पीकिंग मीन्स बोलना. ठीक है, रीडिंग, रीड माने पढ़ना. पढ़ नहीं पाओगे तो समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, और अगर पढ़ नहीं पाओगे, ये नहीं समझ में आएगा क्या लिखा है, तो उस क्वेश्चन में क्या करना है ये नहीं समझ में आएगा. तो रीडिंग भी बहुत जरूरी है. एंड नेक्स्ट इज राइटिंग, लिखना. बोलना आता है, पढ़ना आता है, सुन लिया, समझ लिया, बट अगर लिखना नहीं आता है कि इसमें लिखना, आंसर तो मालूम है बट लिखना ही नहीं आता है, देन हाउ विल यू राइट. सो दीज आर द 4 मेन स्किल्स. ओके, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. ठीक है, सो वी हैव डन द लिसनिंग पार्ट जो हमने भी किया था कल इन आवर प्रीवियस इंग्लिश क्लास. फन विद द साउंड ऑफ ई. दिस टॉक टाइम इज योर स्पीकिंग पार्ट. ठीक है, एवरी लेसन देर आर डिफरेंट थिंग्स. हर एक चीज में, हर एक लेसन में अलग अलग कॉन्सेप्ट है जिससे कि आपकी स्पीकिंग इंप्रूव हो. जैसे फर्स्ट लेसन में हमने यूज ऑफ इज, एम एंड आर पढ़ा. ठीक है, इसमें हमने दिस इज एंड दैट इज किया. दिस इज योर स्पीकिंग पार्ट. दिस इज टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग पार्ट. ठीक है, टॉक टाइम जो होता है ये आपका स्पीकिंग का पार्ट इंप्रूव करने के लिए है. रीडिंग, व्हेन वी स्टार्ट अ लेसन, सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं. वी रीड द लेसन, उसका मैं लेसन की रीडिंग करती हूँ. आई एक्सप्लेन द लेसन, देन अगेन आई रीड द लेसन एंड आई आस्क यू टू रिपीट आफ्टर मी. मैं बोलती हूँ ना कि मैं रीडिंग करूंगी, आप मेरे बाद उसको रिपीट करोगे. जैसे वीडियो में, जैसे मैं जब रीड करती हूँ तो मेरे साथ साथ मेरे बाद आप भी रिपीट करोगे. सो दैट इज योर रीडिंग पार्ट. नाउ दिस इज योर राइटिंग स्किल. दैट मीन्स आपकी जो
लिखने का पार्ट है. राइटिंग स्किल डज नॉट मीन योर हैंड राइटिंग. ओके, राइटिंग स्किल से मतलब आपका हैंड राइटिंग से नहीं है. किसी सेंटेंस को अगर आपको अपने आप फ्रेम करके लिखना है, अगर अपने से कुछ लिखना है, सो हाउ विल यू राइट. ओके, सो राइटिंग स्किल से हम अपना राइटिंग पार्ट को इम्प्रूव करते हैं. दैट मीन्स हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. आपको अगर कुछ लिखना है तो आप उसे कैसे लिखोगे. हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है बट पता ही नहीं कि क्या लिखना है. ओके, सो राइटिंग स्किल मीन्स हाउ डू यू एक्सप्रेस योर सेल्फ. आपको अगर अपने आप को एक्सप्रेस करना है, कुछ लिखना है तो कैसे लिखोगे. ओके, सो वी विल डू दिस राइटिंग स्किल टुडे. Writing skills. Okay, now in this writing skill what you have to do is look at the pictures and complete the sentence. You can use the following words. In this you can see the picture and I am sure you all know this story. मुझे मालूम है ये सभी बच्चों को ये वाली स्टोरी मालूम होगी. मॉरल स्टोरी में सबने पढ़ी है. वर्ड्स आर गिवन. यूजिंग द वर्ड्स यू हैव टू fill the sentences. You have to complete the sentences. And when you complete the sentences, then you will get the story. Okay? आपको हेल्प करने के लिए ये वर्ड्स दिए गए हैं so that you can fill them and complete the sentence. So once there was a, I hope you all have heard this story. Once there was a, first picture में क्या है? This is a crow. The word is crow. So once there was a crow. First word would be crow. He had a piece of dash. What is he having? उसके मुंह में क्या है? He had a piece of bread. Out of these words, you have to choose the correct word and complete the sentences. So he had a piece of bread. He had a piece of bread. उसके मुंह में you can see bread. इंग्लिश में चपाती को या रोटी को भी ब्रेड कहते हैं. ठीक है, जैसे ये स्टोरी सबने पढ़ी है ना, फुलिश क्रो वाली. सो ही हैड अ पीस ऑफ ब्रेड. यू कैन सी दिस इज चपाती. ठीक है, तो इन इंग्लिश चपाती को ब्रेड भी कहते हैं. सो ही हैड अ पीस ऑफ ब्रेड. ही sat on the, sat means once there was a crow. मतलब एक बार एक क्रो था. He had a piece of bread. उसके पास एक ब्रेड का पीस था. He sat on the branch. वो कहाँ बैठा था? He sat on the branch of a tree. वो एक ट्री के ब्रांच पे आपको दिख रहा है. He sat on the branch of a tree to eat the bread. उसने सोचा कि मैं एक ब्रांच पे बैठ के आराम से पीसफुली इस ब्रेड को खाऊंगा. A hungry, hungry मतलब भूखा. A hungry dash. Who saw him? Which animal is this? A hungry. You have to choose the word from here. A hungry fox. A hungry fox saw him. एक hungry fox ने उसको देखा. ठीक है, a hungry fox saw him. Fox as such is a very cunning animal. जो fox होती है वो बहुत ही cunning, बहुत चालाक एनिमल होती है. ठीक है, तो उसको एक आइडिया आया. उसको भूख लग रही थी तो
क्रो के पास से कैसे चपाती को ले, उस ब्रेड को कैसे ले, उसको एक आइडिया आया। उसने क्या कहा? He said, Mr. Crow, your voice माने आवाज, your voice is so, now tell me the word out of these, your voice is so sweet. उसने कहा, Mr. Crow, your voice is so sweet. तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है, इतनी अच्छी मीठी सी है. Please sing a song. The word would be song. Please sing a song for me. The fox said, Mr. Crow, your voice is so sweet. Please sing a song for me. मेरे लिए एक गाना गा दो. The, which word will come here? The foolish. Foolish मतलब बेवकूफ. The foolish crow opened his mouth. Foolish crow opened his mouth to sing. Foolish मतलब बेवकूफ. उस बेवकूफ क्रो ने अपना मुंह खोला गाना गाने के लिए. The bread fell down. The bread fell down. Down मतलब नीचे. उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, ब्रेड नीचे गिर गई. The fox picked it up. फॉक्स ने उसको उठा लिया and ran away. The fox picked it up and ran away. So the story is, once there was a foolish crow. एक बार एक क्रो था, was very foolish. Foolish मतलब बेवकूफ. So once there was a crow. एक बार एक क्रो था. You can see the picture. He had a piece of bread. उसके पास क्या था? एक ब्रेड था. You can see the bread in its beak. So he had a piece of bread. He sat on the branch of a tree to eat the bread. वो कहाँ बैठा? एक ट्री के ब्रांच पे. वो एक ट्री के ब्रांच पे बैठा उस ब्रेड को खाने के लिए. A hungry fox saw him. You can see the fox here. The fox was hungry. तो वो जो fox थी, hungry fox, उसने देखा कि उसके पास एक ब्रेड का पीस था क्रो के पास. Since the fox was hungry, so the fox thought of a plan. उसको किसी तरह से वो ब्रेड का पीस चाहिए था, तो उसने एक प्लान किया. He said, Mr. Crow, your voice is so sweet. उसने कहा कि Mr. Crow, your voice is so sweet. तुम्हारी आवाज कितनी स्वीट, कितनी मीठी है. Please sing a song for me. मेरे लिए एक गाना गा दो. The foolish crow opened his mouth to sing. अभी क्रो तो बहुत बेवकूफ था, उसको समझ में ही नहीं आया कि फॉक्स जो है वो उसकी ब्रेड लेने के लिए ऐसा बोल रही है. ठीक है. क्रो की हैव यू हर्ड, कभी आपने क्रो की आवाज सुनी है? क्रो की आवाज बहुत खराब होती है. का करता है ना क्रो. तो क्रो की जो वॉइस है वो तो स्वीट कभी नहीं होती है. बट फॉक्स तो बहुत कनिंग थी. उसको तो ब्रेड का पीस चाहिए था. तो उसने कहा कि मिस्टर क्रो, योर वॉइस इज सो स्वीट, प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी. मेरे लिए गाना गा दो. द फूलिश क्रो ओपन हिज माउथ टू सिंग. जो क्रो था वो एकदम फूलिश था, बेवकूफ था. वॉज वेरी हैप्पी. उसको लगा कि अरे वाह, फॉक्स इज प्रेजिंग मी, मेरी कितनी तारीफ कर रही है. एंड जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, द ब्रेड फेल डाउन.
The fox picked it up and ran away. जैसे the moment the crow opened his mouth, जैसे उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, ब्रेड गिर गई उसके मुंह से. फॉक्स ने तुरंत वो ब्रेड उठाई एंड रन अवे, भाग गई. फुलिश क्रो देखता रह गया. फुलिश क्रो ने जैसे अपना मुंह खोला, द ब्रेड फेल डाउन. फॉक्स ने क्या किया? द फॉक्स पिक्ड इट अप एंड रन अवे. ओके, so I'm sure you all have heard this story. So with this writing skill, children, we have completed lesson number 2. Okay, so whatever I have taught, whatever I have explained, जिस भी दिन जो पढ़ाती हूँ, I keep on sending the exercises. Please keep on doing it. Be regular with your work. मैं बहुत ज्यादा वर्क एक दिन में नहीं भेजती हूँ. I send very little work. थोड़ा थोड़ा वर्क भेजती हूँ, so that it is not a burden for you. Be regular with your work. अपना वर्क बेटा आप टाइम पे करते रहोगे, चाहे कॉपी में करना हो, चाहे बुक में करना हो. So with this writing skill, we have completed the lesson. After this, I will start the poem, A Box of Crayons. Okay, children? So that is all for today. Thank you for joining me, and I do hope that you all are seeing the videos. Okay, children? Thank you.